سید الشباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تبال اعدائهم من الان الى لقاء يوم الدين. اما بعد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو اصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات محمد. اللهم صل على محمد. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس معبود کا، اس پروردگار کا، جس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ان ایام فاطمیہ میں کہ شہزادی کے ذکر مسائل اور فضائل کو ہم سب فرش ازا کے طور پر بچھا سکیں. اس معبود کا احسان، اس معبود کا کرم کہ جس نے چند سانسیں دی جو اہل بیت کی بارگاہ میں گزر سکے. خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، ایسا خدا کہ جو اپنی ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، لم یلد ولم یولد ہے. ایسا خدا جو نہ کسی کا باپ، نہ اس کا کوئی باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ کسی کا رشتہ دار، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، پھر بھی سب کا سب کچھ. وہی خدا ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اس آیت میں تقریباً 3 جز بنتے ہیں. مختصراً ایک توضیح پر علماء کرام موجود ہیں بعنوان اصلاح. پہلا جز اس میں جو بنتا ہے کہ جس وقت انسان ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد دوسری شرط ہے تقوی اختیار کرنا، متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا. پھر تیسری شرط اور آخری مرحلہ جو اس آیت میں وہ یہ ہے کہ وسیلے کی تلاش کرنا، ایسا وسیلہ جو خدا تک مستقیما لے جا کر ملا دے. وسائل بہت ہوتے ہیں لیکن جو بیچ میں راستہ چھوڑ دیا کرتے ہیں. دنیا میں وسیلے بہت ہیں. اگر آپ کو یہیں پہنچنا تھا، اسی جگہ پہ بھی ہم کو اگر آنا تھا، تو کوشش یہی ہے، ہر کسی نے کوشش یہ کی کہ اس جگہ ہم جا رہے ہیں کوئی ایسا وسیلہ اختیار کریں جو ہمیں صحیح و سالم اس جگہ پر لے جا کر پہنچا دے. کہیں راستے میں وہ وسیلہ ہمیں دھوکہ نہ دے جائے. اکثر بر صغیر میں ہمارے ہاں ایک سواری ہوتی ہے جس کا نام ہے ٹیمپو، جو 3 پہیے ہوتا ہے، جس کا بھروسہ بھی نہ وہ خود اسے اپنا بھروسہ نہ بیٹھنے والے کا بھروسہ. وہ جہاں چاہے خود بھی ڈوب جائے اور دوسرے کو دے دے. تو ایسے وسیلے کے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا وسیلہ جس سے خود اپنے اوپر بھی اعتماد نہیں اور جو اس پر بیٹھا ہے اس کو بھی اعتماد نہیں. بس وسیلہ ایسا جو مطمئن ہو کہ جو 3 پہیے کا نہیں بلکہ 4 پہیے والا ہو، جو نجات دلا دے، خود بھی پہنچ جائے اور اپنے مسافر کو بھی ساتھ لے جائے. ایک صلوات دے محمد والے. پہلی شرط ایمان کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا. قرآن نے جو اس آیت کے اوپر بہرحال بڑے ہی اس کے اندر مفسرین نے بھی تفسیریں لکھی ہیں اور کافی اس پر بحث کی گئی ہے کہ ایمان سے مراد کیا ہے. یہاں پر جو ایمان سے مراد لی جا رہی ہے، آخر ایمان سے مراد کیا ہے. بہرحال تفاسیر دیکھی گئی اور آگردانی کی گئی. تو ایمان پر جا کر ایک جگہ پر جا کر تاریخ میں جا کر انگلی اٹھے کہ جہاں پر رسول کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. یعنی تاکید یہاں پر جو ہے انسان کا ایمان صحیح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ در اہل بیت پر نہ آ جائے. شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ایمان کو سدھارنا چاہتا ہے، ایمان کو صحیح کرنا چاہتا ہے، تو در اہل بیت پر اسے آنا ہے. در اہل بیت پر جب انسان آ جائے گا، ایمان خود بخود اس کا صحیح ہوتا چلا جائے گا. بہت سی چیزیں ہیں پروردگار نے ہر انسان کو نعمت سے نوازا ہے. کسی کا کاروبار ہے، کوئی دکان چلا رہا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کیا ہے. لیکن ہر چیز میں جو سب سے مین چیز، اہم چیز جو اس کا کردار، کریکٹر اس کے اندر جو پائے گا وہ ایمان.
अगर ईमान सही है तो रिस्क में बरकत आ जाएगी, अगर ईमान सही है तो आपकी जो रोजी है वो खैर में बदल जाएगी। ईमान सही है, आप किसी मनसब पे बैठे हैं, अगर वहां हदिये में इसके नीचे के नहीं चल रहे हैं तो सारा मामला सही होता चला जाएगा। ईमान सही है, अगर एक दुकानदार किसी जगह पर अपनी दुकान चला रहा है, आलू प्याज मटर कुछ भी बेच रहा है, अगर उसका ईमान सही तो उस तराजू में अगर उसने जरा बराबर भी कमी नहीं की तो इसका मतलब कि वहां से भी उसको निजात मिल गई। यानी ईमान अगर सही है तो सारा मामला सही होता चला जाएगा। तारीख में भी ऐसे बहुत से ईमानदार और बेईमान गुजरे हैं कि जिनको तारीख ने बहुत सराहा है, बहुत ही उठाया है और बहुत ही सामने लाया गया है। कहते हैं कि अगर चोर को लाकर खुद जिस जगह से चोरी हो रही वहीं बैठा दिया जाए, उसी जगह पे लाकर रख दिया जाए, कभी चोरी ना होगी। इस्लाम में तो ऐसे चोर थे कि जिनको लाकर मेन दरवाजों पर बिठा दिया गया, जो समझ है वो करते चले गए। सलवार में जो मोहम्मद वाले ईमान हर इंसान का बहुत सी चीजें देखकर डामाडोल होने लगता है, खुसूसन ये ज़र्क बर्क दुनिया, किसी से देखकर फौरन इंसान जो है फिसल जाता है। एक हुस्न एक दौलत, दो चीजें ऐसी हैं कि अच्छों का ईमान खराब हो जाता है। बड़े ही पारसा हो, इतना ही बड़ा आबिद क्यों ना हो, नेक मुत्तकी परहेजगार क्यों ना हो, उसको ये दो चीजों पर आकर वो जो चले। लेकिन कामिल ईमान कौन होगा? जो इन सब को छोड़ दे। उनमें से अगर कहते हुए नजर आ रहा है कोई, वो कुल्ले ईमान है कि मैंने उसको 3 मरतबा तलाक दिया है। एक सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान ने ईमान के लिए ताकीद। चलिए ईमान की तरफ चलते हैं। तारीख में बहुत प्यारा वाकया नकल किया गया है इस ईमान के ऊपर। जनाब ईसा के दौर के लिए मिलता है कि जनाब ईसा हैं, एक सहरा में चले जा रहे हैं और जनाब ईसा के साथ उनके एक शागिर्द है जो हमेशा उनके साथ कहते हैं कि लोटा भर के हमेशा रखने वाला, यानी अजीज दुर्दाना अपनी जबान में जिसे कहा जाए, हमेशा जनाब ईसा के साथ साथ ही रहा करता था। जनाब ईसा बहरहाल चले जा रहे हैं अपने शागिर्द के साथ, और शागिर्द आपके साथ मौजूद, अकेले दोनों चले जा रहे हैं, नबी खुदा और आपका शागिर्द। कहते चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, बहरहाल एक जगह पर पहुंचे। जनाब ईसा को भूख लग गई, जनाब ईसा को भूख लग गई। जनाब ईसा ने अपने शागिर्द से पूछा, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? कहता हाँ नबी खुदा मुझे भी भूख लगी है। कहा तुम्हारे पास कितना पैसा है? पर उसने अपनी जेब में हाथ डाला, देखा उसमें तो 2 सिक्के निकले। जनाब ईसा ने अपनी जेब में हाथ डाला, 1 सिक्का निकला, हमारी दुनिया से 1 सिक्का निकला। जनाब ईसा ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि इस पैसे को लो और जाओ फला फला जगह पे, वहां जाकर रोटी खरीद के लाओ, थोड़ा सा खाना खाया जाए, उसके बाद यहां से आगे चलते हैं। देखिए ईमान अगर इंसान का डामाडोल हो जाए, अगर ईमान इंसान का खराब हो जाए तो क्या क्या मुश्किलात आती हैं। बहरहाल ये शागिर्द गया, जाने के बाद इसने रोटियां खरीदी, 3 पैसे में 3 रोटी, 3 पैसे में 3 रोटियां। रोटियां वहां से लेता है, लेकर वहां से चला। अभी दुकान से कुछ दूर पहुंचा ही था कि एक बार भी इसको याद आया, कहता है कि मैं पैसा तो मेरा 2 था, उस्ताद का 1 था, रोटियां दोनों बराबर से खाएंगे, 1.5 रोटी जनाब ईसा खाएंगे, 1.5 रोटी मैं खाऊंगा, पैसा मेरा ज्यादा। कहते एक मरतबा खलफशार इसके जहन में आना शुरू हो गया। कहता ऐसा करता हूं कि जनाब ईसा को क्या पता, वो यहाँ तो है, देख तो रहे कितना मिला है। कहते 1 रोटी मैं अपनी वाली खा लेता हूँ, 1 रोटी खा के कहते ले जाकर वहां 2 रोटियां दे दूंगा। भाई कहते 1 रोटी इसने जो है वहां खाई, मुंह से जाने पहुंचा जनाब ईसा के पास। क्या हुआ, कितनी रोटियां मिली? या नबी खुदा ये 2 रोटियां। कहते जनाब ईसा ने 1 रोटी खाई और 1 रोटी जो है शागिर्द को दी, 2 रोटी खाया, शुक्र खुदा अदा किया, उसके बाद चल दी फिर वहां से। कहते अभी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं कि एक जगह पर बहरहाल चलते चलते पूरा दिन गुजर चुका है, शाम होने वाली है। बहरहाल इंसान कहते हैं जब गाड़ी चलती है तो उसको पेट्रोल चाहिए, इंसान जब हरकत करता है तो उसके जिस्म में तवानाई चाहिए, बहरहाल जो एनर्जी है धीरे धीरे खत्म होती जाती है। कहते जनाब ईसा चलते जाना, ये भी शाम हो चुकी है, शाम नजदीक हो चुकी है, अब न यहाँ दुकान है न कुछ है, यहाँ कुछ भी नहीं, सहरा बियाबान जंगल, परेशान, भूख फिर भूख लग गई दोनों आदमी को। कहते अब क्या किएगा? कहा जनाब ईसा ने पूछा क्या तुझे भी भूख लगी? कहा या नबी खुदा मुझे भी भूख लगी हुई है। जनाब ईसा कहते मुझे भी भूख लगी। क्या देखा? सामने से एक हिरणों का गोल जा रहा है, एक अल्लाह हिरणों का सामने से चला जा रहा है।
जनाब ईसा ने इशारा किया, उसमें से एक हिरन वहां से निकल के आया। जनाब ईसा ने फरमाया इसको ज़िबा करो और इसको कबाब करते हैं। बहरहाल हिरन को ज़िबा किया गया। ज़िबा करने के बाद अब यह कि उसको कबाब तैयार किया गया। दोनों उस्ताद शागिर्द ने खूब खाया, शेर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र खुदा। फिर जनाब ईसा ने उसकी तरफ मुतवज्जो थे, फरमाते क्या पेट भर गया तुम्हारा? कहा या नबी खुदा, शेर हो चुका हूं। एक मरतबा जनाब ईसा फरमाते हैं कि अब जरा बराबर की गुंजाइश तो नहीं है कि बाद में अभी इसलिए सफर तुलानी है, ऐसा ना हो कि फिर भूख लग जाए। कहा नहीं या नबी खुदा, शेर हो चुका हूं। कहते जनाब ईसा ने एक मरतबा इशारा किया, सारी हड्डियां जमा होना शुरू हो गई। कहते जमा होते होते एक मरतबा हिरन आपस में लड़खड़ाया और लड़खड़ा हिरन खड़ा हो गया और भागा वहां से। ये देख के इसकी आंखें खुल गई, या नबी खुदा ये क्या? खा भी लिया, जिंदा भी हो गया, चला भी गया। कहते एक मरतबा जनाब ईसा ने उससे पूछा कि तुम्हारे ईमान का क्या आलम है? कहते या नबी खुदा, ईमान तो पहले ही से आपको ला चुका था, लेकिन ये मौजूदा देखकर ईमान मेरा अर्श चहलम पर पहुंच चुका है। कहते जनाब ईसा मुस्कुराए, कहा अच्छा बताओ रोटियां कैसी? रोटियां कैसी? कहते क्या नबी खुदा, सर को झुकाता, कहते रोटी तो दो ही थी। चलो, कहते फिर चल दिए। रात गुजर गई, आराम किया। कहते चलते जा रहे रास्ते में देखा एक दरिया पड़ा, एक समंदर पड़ा। जनाब ईसा ने कहा कि समंदर को हमें पार करना है, यहां से हम लोग को आगे निकलना है। इसने चारों तरफ देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, न कोई नाव, न कश्ती, न कोई सवारी, कुछ भी नहीं, और न पुल। कहा कि यार अब ये खुदा यहां से कैसे पार करेंगे? कहा मैं हूं, मैं आगे चलता जाऊं, तुम मेरे दामन को पकड़े रहना, ये दरिया खुद ब खुद पार हो जाएगा। कहा या नबी खुदा ये पानी है? कहा मैं कह रहा हूं। यानी इससे ये पता चल गया कि नबी के साथ रहते हुए भी लोगों की ईमान दुरुस्त न रहे, पहले भी लोग गुजर चुके और बाद में भी आए हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, इससे बेहतर सलवात भेजे मोहम्मद वाले। कहते मतलब जनाब ईसा ने कहा देखो मेरे दामन को छोड़ना नहीं, वरना मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कहते जनाब ईसा चले, आपने अपने कदम को जैसे ही उस दरिया में रखा, पानी मुंजमद होना शुरू हो गया। कहते बढ़ते जाते दामन को पकड़े हुए और पीछे लटका हुआ चलता चला जा रहा है। पीछे मुड़ के देखता है, पैर जहां पर हट रहा है पानी दोबारा मौजे मारना शुरू कर दे रहा है। करीब मजबूती से दामन को पकड़े हुए जनाब ईसा के साथ चलता चला जा रहा है। बहरहाल दरिया पार हो गया। एक मरतबा जनाब ईसा ने देखा इसके चेहरे पे हवाइयां उड़ी पड़ी हैं और बड़े मुताज्जिब तरीके से जनाब ईसा को देख रहे। जनाब ईसा फरमाते हैं ये बताओ तुम्हारे ईमान का क्या आलम है? कहते या नबी खुदा, कल तो ईमान अच्छा खासा हो गया था, आज तो ना पूछे जो कुछ बचा खुचा था सारा ईमान मैं आप पे ले आएंगे। मेरा ईमान इस वक्त जो आप कहें सब कुछ। कहते हैं मतलब जनाब ईसा ने मुस्कुरा कर कहा अच्छा ये बताओ जब तुम्हारा ईमान अब कामिल हो चुका है, बिल्कुल सही हो चुके हो, ये बताओ रोटियां कैसी हैं? सर को झुकाया। कहते यार नबी खुदा रोटियां तो दो ही थी। कहा चलो, कहा फिर चल दिए दोनों आदमी। कहते चलते जा रहे। कहते एक ऐसी बस्ती में चले जो कभी आबाद हुआ करती थी, पूरा खंडर हो चुकी थी, कभी आबाद हुआ करती। समाधि ऐसी बस्ती में पहुंचे कि जो कभी आबाद हुआ करती, पूरा वीराना हो चुका था, वहां कुछ न था। कहते उस्ताद और शागिर्द इनके अलावा वहां कोई नजर नहीं आ रहा। कहते बसा के बस्ती में पहुंचे, बीच में पहुंचे, क्या देखा 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं। 3 सोने की ईंटें, अरे सोना दुनिया जो देख ले कौन छोड़ने वाला सोना। कहते 3 सोने की ईंटें सामने पड़ी हुई है, वो भी ऐसी जगह पर मिल जाए, क्या कहना। जैसे अभी चंद पहले 10 दिन पहले अभी सफर में था अफ्रीका में, मैं माई वतन से गुजर रहा था। रास्ते में हम लोग गाड़ी पे थे, रास्ते में सरसब्ज जगह, बेहतरीन सरसब्ज जगह, और पहाड़ से निकल के दरिया आ रहा था। पहाड़ से निकला वो दरिया, और दूर से गाड़ी से देखा पानी बिल्कुल चमक रहा है, जैसे लगता है कि सूरज नीचे उतर आया। हम लोग का रोको गाड़ी थोड़ी देर, इसलिए शख्सी गाड़ी थे, 3-4 लोग हम लोग थे गाड़ी में, रोको चले, देखे ये कौन सा पानी है, ये कैसा पानी है। बहरहाल नजदीक गए, हाथ को अंदर डाला, बाहर निकाला तो सोने के जर्रात सब हाथ पर चिपके थे, पूरे जर्रात सोने के हाथ पे चिपके थे, पूरा सोना ही बिखरा, यानी छोटे छोटे वहीं वहां पे बाकायदा जर्रात जैसे होते हैं, जैसे बालू वगैरह देखे हुए आपने, ये मोरंग, उसमें छोटे छोटे जर्रात चमकते हैं उस तरह से।
पूरा जगह देखिए सोने सोना नजर आ रहा है। अल्लाह, ये क्या खुदा की कुदरत। बहरहाल उस पानी को किया गया, पानी भी हम लोग बेहतरीन शीरीन पानी भी पिया गया, लोग पानी भी पिया। उसके बाद अब बहरहाल इंसान है, कहाँ ही छोड़ने वाली चीज उसमें बहरहाल थोड़ी सी मैंने कहा तबरुकन इसमें से मैं भी कुछ समेट लो जरा सा, तबरुकन यादगारी तौर पे जो है ये लेते जाए, यहाँ से ले चला जाए। बहरहाल कहता अब इतना बड़ा सहरा और वहां पे कोई नहीं, 3 सोने की बड़ी बड़ी ईंटें। शागिर्द की तो आंखें देखते ही खुली रह गई। कहता 1.5 बट गई, 2 आदमी के अलावा कोई है नहीं, दोनों में 1.5 बटेंगे। 1.5 जनाब ईसा को भी 1.5 मेरी हो गई। कहते जनाब ईसा नजदीक पहुंचे। उसके बाद जनाब ईसा थोड़ा सा तदबीर और गौर और फिक्र में पड़े और देखते कहते हैं कि 3 ईंटें हैं, हम लोग 2 हैं, ये बटे कैसे? शागिर्द कहता 1.5 और कैसे बटे? कहा नहीं, ये यहाँ पे 3 ईंटें, हम लोग 2 हैं, ये इंसाफ नहीं होगा। एक ईंट तुम्हारी है, एक ईंट मेरी है। कहा या नबी खुदा ये तीसरी उसकी जिसने तीसरी रोटी खाई है। कहते अब यहां पर इंसान कहते कि ईमान का यहां पर इस जगह पे इम्तिहान। जनाब ईसा ने कहा कि यहाँ एक तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूं, और ये तीसरी ईंट उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई है। कहते मतलब इसने सर को झुकाया, मुस्कुराते हुए कहा या नबी खुदा तीसरी मैं नहीं खाई। जनाब ईसा कहते तू तो कहता चला है कि तेरा ईमान कामिल हो गया, चंद जगह तूने मौजूदे देखे, सब कुछ देखे, और अभी तक तू ईमान कामिल नहीं हुआ। इतने साल मेरे साथ तू रहा, इतने साल मेरे साथ उठा बैठा लोटे भर भर के रखता रहा, मेरी बस में रहा, मेरे साथ में। एक दलील और हो गई कि नबी के साथ रहना दलील नहीं होती, दफन भी कर दो जैसे थे वैसे ही उठाए जाएंगे। एक सलवात दे दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी अगर नबी के साथ भी दफन कर दिया जाए, या नबी के साथ अगर गधा मरेगा तो गधा ही उठेगा। वाकया आपके सामने है, अजीज उज़ैर दोनों पैगंबर का। ये अगर गधा मरेगा कितने साल भी नबी के साथ रहेगा, गधा गधा ही रहेगा। बहरहाल ये नबी खुदा के साथ साथ एक मर्तबा आपने फरमाया कैसा है कि अब मेरे पास से तू दफा हो जा, इतने साल तक मेरे साथ तू रहा, मेरी शागिर्दी तूने की, और उसके बाद तेरे ईमान का आलम है। कहते हैं अब दोनों रास्ते यहां से अलग हैं। जनाब ईसा ने उसे धुतकार और फिटकार जो कहना था यहां से अलग। जनाब ईसा अपने रास्ते, अब यहाँ ये बैठा हुआ है। कहा चलो शुक्र, कम से कम 3 ईंटें मेरी हो गई, मैं तो एक एक के चक्कर में था, यहाँ 3 मेरी हो गई। ये बैठा हुआ है, कहने भी सोच रहा था कि इसको लेकर कैसे जाऊं, क्योंकि आगे है दरिया पार करना है, न वहां नाव है, न कश्ती है, न कोई सवारी है, न कुछ है। दरिया पार करना सोच रहे, ईंटें ले जाऊं तो कैसे ले जाऊं। कहने भी बैठा ही फिक्र कर रहा था, सोच ही रहा था। कहते जब ईमान डामाडोल होता है तो मुश्किलात आना शुरू हो जाती है। कहते कि सोच ही रहा था, इतनी देर में क्या देखा कि 3 डाकू उधर से आए। 3 डाकू उधर से, उन्होंने क्या देखा कि एक शख्स बैठा हुआ, उसके पास 3 सोने के ईंटें। ये लोग 3 देखकर मुस्कुराए, एक एक हो गई। कहते आगे बढ़े, शमशीर निकाली, उसके टुकड़े कर दिए, उसे खत्म कर दिया वही। अब यहाँ पे 3 ईंटें, एक एक ईंटें आपस में बैठना, कहा कि 3 ईंटें एक एक ईंट लेते, लेकिन देखो इसको बांटने से पहले भूख बहुत लग रही है। कोई हम में से एक जाए और फला जगह हम लोग रास्ते पे आए थे, वहां पर रोटी मिल रही थी, वहां से रोटी ले आई जाए। बहरहाल जेब में हाथ डाला, एक एक सिक्का निकाला गया, एक एक सिक्का उठाकर दिया गया, सिक्का दिया गया। सिक्का लेकर बहरहाल उन्होंने कहते हैं कि बहरहाल जाओ रोटी लेकर, खाते फिर लेते हैं ईंट, और उसके बाद अपने अपने रास्ते हम लोग रवाना हो जाएंगे। बहरहाल ये शख्स गया रोटी लेने, इसने 3 रोटियां खरीदी। कहता मैं हूं अकेला, वो है 2, ईंटें तीनों में बच जाएंगी। कहता ऐसा ना किया जाए कि एक रोटी मैं अपने हिस्से की खा लूंगा, एक रोटी मैं अपने हिस्से की खा लेता हूं, 2 रोटियों में जहर मिला देता हूं, वो 2 रोटियां वो खाएंगे, मैं अपनी खा चुका हूं, जब कहीं खाने के लिए तो मैं अपना हिस्सा खा चुका हूं। ये रोटियां जैसे ही खाएंगे वो दोनों खत्म हो जाएंगे, ये तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। कहते पिलानी किसने कर ली। वहां वो दोनों ने आपस में मीटिंग की कि हम हैं 2, वो है अकेला, वो गया है रोटी लेने, हम दोनों का एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है।
ऐसा करते हम लोग 1.5 ईंटें आपस में बांट लेते हैं, वो आए उसे कत्ल कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। ये तीनों ईंटें हम लोग की हो जाएगी। इधर इन्होंने प्लानिंग की, उधर उन्होंने प्लानिंग। देखिए ईमान अगर डामाडोल हो जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कहते अगर ईमान गड़बड़ हो गया सारा मामला धीरे धीरे गड़बड़ होता चला जाएगा। अब इधर से इसने रोटी खरीदी 3, एक खा गया, 2 रोटियां लेकर चला, पहुंचा वहां, कहा कि 2 रोटियां, पैसा तो 3 देकर, कहा मुझे भूख लगी तो मैं अपनी रोटी खा गया, ये तुम दोनों की रोटी है। उन लोगों ने रोटी लिया, शमशीर निकाली और उसको कत्ल कर दिया, उसको वहीं पे खत्म कर दिया गया। अब खुशहाल है, कहते हैं चलो खाना खाते हैं, उसके बाद यहां से रवाना होते हैं। दोनों ने नोशिदान किया, उधर से अजल ने लब्बैक कहा, दोनों निकल लिए। इधर से ये गया, ईमान खराब हुआ, उधर से वो दोनों गए। कहते अब यहाँ पे 4 लाशें पड़े हुए हैं। कहते 2 दिन बाद जनाब ईसा का फिर गुजर हुआ उधर से। जनाब ईसा देखते हैं कि वहां पे शागिर्द भी मरा पड़ा हुआ है और 3 लोग और पड़े, ईंटें तीनों वैसे ही पड़ी हुई। जनाब ईसा ने कहा खुदा क्या तेरी महिमा है। जनाब ईसा खुदा की तरफ मुतवज्जे होते हैं, परवरदिगार अगर ईमान खराब हो तो उसकी बुनियाद कैसी होती है और उसका नतीजा कैसा होता है। पैगंबर खुदा ने कहा, नबी खुदा ने कहा, अगर इंसान का ईमान अगर खराब हो जाए तो खसरत दुनिया वल आखिरह नतीजा सामने है। एक सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तारीख में और भी बहुत बेईमान मिले, अहले बैत के दर पर बैठे तो रहे लेकिन आस्तीन के सांप बने रहे। अगर ईमान सही रहा तो कहते हैं कि जमीन से कि जहां पर इस्लाम भी न था यहां से उठ कर गया तो अहले बैत में शामिल हो गया। ईमान खराब रहा तो बज़्म से बैठा हुआ इंसान भी उठा दिया गया। एक सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान ने कहा अपने ईमान को दुरुस्त करो। अगर आज ईमान दुरुस्त ना होता तो आज अहले बैत पे जो मुसीबतें आई हैं, अहले बैत आधार पर जो तरह तरह की मुसीबतें लाई गई हैं, असल जड़ बानी बने हैं लोग वही नहीं कहना। तारीख में बहुत नाम पड़े हुए हैं कि असल ईमान जो खराब हुआ है, सारी खराबी ईमान की थी। जो सबसे पहली जिनायत इस्लाम में की गई है वो पैगंबर के साथ की गई, पैगंबर के साथ पहली जिनायत की गई। और उसके बाद जो दूसरी जिनायत हुई इस्लाम में, ईमान जहां से खराब हुआ है वो दर ज़हरा पर आकर रही है। वो ईमान की खराबियां जहां जहां ईमान खराब होता चला गया है वहां गड़बड़ होती चली गई। आका हुसैन के साथ भी बहुत निकले थे, मौला के साथ काफी निकले थे मदीने से, लेकिन पहुंचते पहुंचते बहुत से लोग वहां जाओ हशम की लालच में निकले थे, बहुत से मनसब की लालच में निकले थे, बहुत से मालूज़र की लालच में निकले थे।